हमें ऑडिबल? यस अभिनव, धीरेन, प्रिया, बताओ कितने क्वेश्चंस हो गए? 4 एमएसक्यू थे। 3 हो गए 3 हो सर गए। 3 हो गए। 3 त्रिशा, वेरी गुड। 3 ओके गुड। चलो बताओ किसमें डाउट है? फर्स्ट में। फर्स्ट। फिर ओके, इसमें ऑप्शन बी गलत की वजह से मैंने ऑप्शन बी बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, 3 ऑप्शंस करेक्ट हैं इसमें। ठीक है, बी करेक्ट किया मैंने। हाँ बी करेक्ट होगा, करेक्ट होगा बी। ठीक है, क्यों होगा देख लेते हैं। लेट मी डिस्कस ऑल द ऑप्शंस वन बाय वन। सो क्वेश्चन नंबर 1, this question appeared in JAM 2018. According to this, option A is the TDS equal to CVDT plus 3 times del P by del T at constant V dt. So इसकी authenticity check करने के लिए this is a TDS equation which connects entropy in terms of temperature and volume. So I'm going to start with this. Let S depends on T and V. So ds will have 2 partial derivatives in it, del S by del T dt plus del S by del V dV. Now this by definition is CV. Pre-multiply by temperature on both sides of the equation. CV is defined like this, del Q by del T at constant V. So in terms of temperature and entropy, assuming number of moles to be 1 students, so this becomes CV, and hence TDS equation comes out to be CV dt plus, I can use here a Maxwell equation SPTV wala, positive wala, SPTV. So according to which del S by del V at constant T barabar del P by del T at constant V. So this becomes del P by del T at constant V, and thereby option A is correct, which I believe कि आप लोगों का हो गया होगा. ठीक है, let me check option B, second option. So according to second option, TDS बराबर Cp dt minus T times del V by del T at constant P dt. So I can see that here this is a TDS equation where entropy is expressed as a function of temperature and volume. So I'm going to start with this. Let S be a function of T and P. So ds will be del S by del T at constant P dt plus del S by del P at constant T dt. Pre-multiply by temperature on both sides of the equation. This is Cp. So first term becomes Cp dt, assuming number of moles to be 1. I can use SVTP wala Maxwell relation, which is negative wala Maxwell relation, according to which this partial derivative is equal to negative of del V by del T at constant P dt. यही डाउट था धीरेन? So option B is correct. यस सर। ठीक है, option A is also correct. Option C और option D देखो. Option C के अकॉर्डिंग df इक्वल टू माइनस SDT प्लस PdV, एंड ऑप्शन B के अकॉर्डिंग dg इक्वल टू माइनस SDT प्लस VdP. अब इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए यूज द मेनिमोनिक शॉर्टकट यूज करो. ग्रेट फिजिसिस्ट हैव स्टडीड अंडर वेरी फाइन टीचर्स. ये लेटर बना लो. तो यहां से आप देख सकते हो dg इज इक्वल टू, नीचे गए तो नेगेटिव का साइन, राइट हैंड साइड में गए तो पॉजिटिव का साइन, एंड देयरबाय ऑप्शन डी इज करेक्ट. df इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में गए तो नेगेटिव, नीचे गए तो नेगेटिव, सो देयरफॉर माइनस SDT माइनस PdV. इस पॉजिटिव की वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया, एंड हेंस इन दिस ए. किसी का हो पाया था ये? एनीवन? यस सर। यस सर। ए, बी एंड डी, 3 ऑप्शंस करेक्ट हैं इसमें. 3 ऑप्शंस आर करेक्ट. नेक्स्ट डाउट बताओ एमएसक्यू में, दूसरा, तीसरा, चौथा, कोई क्वेश्चन? सेकंड, थर्ड, फोर्थ? थर्ड। महिमा कौन से में डाउट है? थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, ओके. चलो ये नोट कर लो, थर्ड पे चलते हैं. किसी का हो पाया थर्ड? इजी है क्वेश्चन थर्ड. यस सर। यस सर। गुड गुड गुड. सर ऑप्शन बी और डी में कंफ्यूजन है. कोई नहीं, हम सब डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. कर लो जल्दी, नोट करो क्वेश्चन 1. In next class, we will start with phase transition. Next chapter, chapter 7. Done? यस सर. बताओ बेटा, डन? यस और नो? यस सर. डन सर. चलो आगे प्रोसीड कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. Okay, so the correct expression for isothermal expansion at temperature T for 1 mole of an ideal gas. So system is 1 mole of an ideal gas. Process is
isothermal expansion, and this isothermal expansion is carried out at temperature T naught, let's say T naught, such that V initial is the initial temperature and Vf is the final volume. Vi and Vf are the initial and the final volumes. You need to identify the option A, delta F equal to what? According to this is equal to RT natural logarithm of V initial over में V final. चेक कर लेते हैं इसको. डेल्टा F निकालना है बेटा महिमा. तो उससे डेल्टा F निकालने से पहले अपने को DF का एक्सप्रेशन देखना होगा कि DF किसके बराबर होता है, DF. ठीक है, तो मेनेमोनिक यूज कर लेंगे. ग्रेट फिजिसिस्ट हैव स्टडीड अंडर वेरी फाइन टीचर्स. तो यहां से देख के बताओ DF किसके बराबर, बताओ, आप ही बताओ महिमा. माइनस का PdV SdT. माइनस का PdV. सही है, क्योंकि ये प्रोसेस आइसोथर्मल है तो dt 0, Yes, sir. तो DF इक्वल टू माइनस PdV. P की Yes. जगह क्या रखोगे बच्चे, माइनस nRT बाय में V. टेम्परेचर कांस्टेंट है, इंटीग्रल के बाहर आएगा. DF से डेल्टा F कैसे निकलेगा, DF से डेल्टा F इंटीग्रेट करके. Yes, sir. सही है, तो आंसर आ गया माइनस nRT नॉट ln ऑफ VF बाय VI, व्हिच आई बिलीव आपका हो गया था एंड दिस वाज नॉट योर डाउट. तो Yes, ऑप्शन sir. ए इज करेक्ट. चलो गुड, ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऐसे किया होगा ना आपने ये. ऑप्शन बी देखते हैं. ऑप्शन बी में डेल्टा जी देखना है. डेल्टा जी इक्वल टू RT ln ऑफ VI बाय VF. ऑप्शन बी डेल्टा जी निकालना है. डेल्टा जी निकालने के लिए फिर से मैं डीजी देखूंगा, डीजी किसके बराबर. सो डीजी बराबर राइट हैंड साइड में गए तो पॉजिटिव का VDP, नीचे गए तो नेगेटिव का Minus SdT. क्योंकि आइसोथर्मल है तो dt 0. V की जगह लिख सकता हूं nRT नॉट बाय में P. डेल्टा जी निकालना है, इंटीग्रेट इंटीग्रेट, सो यू विल गेट nRT नॉट ln ऑफ P फाइनल बाय P इनिशियल. इतना आ गया होगा प्रोबेबली आपका भी. Yes, sir. ठीक है, अब देखो बेटा, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, सो देयरफॉर PV का प्रोडक्ट इक्वल टू कांस्टेंट. सो PI VI बराबर PF VF. सो यहां से आप PF बाय PI का रेशियो देख सकते हैं. इट विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ VI बाय VF. सो देयरफॉर आई कैन रिप्लेस रेशियो ऑफ प्रेशर्स बाय रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स इनिशियल ओवर में फाइनल, व्हिच आई बिलीव कि यही गिवन है. देख लो, Okay, VI by sir. VF. That is why option B is also correct, right? And C and D भी आप similarly check कर लेंगे. N is 1, so N will go and answer will be RT not ln of VI by VF. Anyone want me to check option C and D? If yes, तो kindly communicate. Otherwise, it's fine. महिमा, that's it. इतना ही डाउट था आपका. Yes, sir. चलो नोट कर लो, आगे चलते हैं. Anything else in MSQ? Any student? Okay, NAT numerical answer type बताओ. Which question? सेकंड में ऑप्शन सी. क्वेश्चन हाँ नंबर प्रिया, 1. प्रिया. क्वेश्चन सेकंड में ऑप्शन सी. सेकंड का ऑप्शन सी. MSQ की बात कर रहे हो आप? यस सर. Okay. चलो पहले ये नोट कर लो, देन सेकंड का ऑप्शन सी देख लेते हैं. सर एनएटी में सेकंड एंड फोर्थ. NAT पे आएंगे अभी मितेश. अभी इसको प्रिया को डाउट आ रहा है MSQ में. सर ये जैसे आपने अपने क्वेश्चन नंबर 3 करवाया है, इसका जो ऑप्शन डी है उसमें डेल यू निकाल रखा है सर. हाँ, सर वो गलत है क्या? चेक कर लेते हैं. चेक कर लेते हैं. नमन, ऑप्शन डी के लिए DU का फॉर्मूला लिखो. मम्मी जी आप काम की बात करो, पानी को कमी सकती TDS माइनस PDV. अच्छा टेडी मत क्यों नहीं आया मुझे बताओ. बेटा बहुत नॉइस आ रहा है. हिमांशु म्यूट करो. सॉरी सर. सो DU बराबर TDS माइनस PDV, राइट. सो यू नीड टू चेक वेदर इट्स करेक्ट और नॉट. कैसे करोगे बताओ ये स्टूडेंट्स? ये अभी होगा आप लोगों ने. सिंस दिस प्रोसेस इज आइसोथर्मल, वैसे हो गया सर एक तरह से. मतलब बताओ ना, सिंस दिस प्रोसेस इज आइसोथर्मल तो DU बराबर किसके बराबर होगा? DU dt is 0, तो डेल्टा U विल बी कितना होगा? होगा सर. Yes or no? यस सर. Naman. So therefore option D is wrong. Yes. It's incorrect. Delta U will be 0. Simple है. चलो. So MSQ में I have discussed question 1 with you. Question 2 अभी कर लेते हैं and I have also discussed question 3 with you. Can I erase this? कर लिया note? यस Yes, सर. sir. चलो. Question 2 हुआ किसी का? Anyone? Any student who can say yes on it? Yes, Question 2. Yes, sir. सर. चलो गुड है यार, वेरी गुड. कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है थोड़ा बहुत थर्मोडायनामिक्स में? Yes or no? इस चैप्टर Yes, में sir. चलो ठीक है, गुड. देखो अपनी परफॉर्मेंस ऐसे जज करो. ये देखो कि आप लोगों का परफॉर्मेंस कैसा है दूसरे सब्जेक्ट्स में और कंपेयर करो थर्मोडायनामिक्स से. ठीक है, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट द एक्चुअल क्रक्स कि हम कहां लाई कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में. कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है बाकी सब्जेक्ट्स में, कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है थर्मोडायनामिक्स में. घर पे जब क्वेश्चन करके देख रहे हैं तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे? ये बताओ. 50% क्वेश्चन निकल जाते हैं. 10 क्वेश्चन ट्राई किए, 10 में से 5 निकल जाते हैं. बताओ बताओ, अपना अपना रिव्यू दो. Yes, sir. यस Yes, सर. sir. बताओ, सब लोग बताओ. बाकी लोग भी बोलो. यस सर. हो जाते हैं 50% हो जाते हैं ना. मोर देन 50 होगा. हाँ, मोर देन 50% अगर निकल जा रहे हैं देन यू आर ऑन द करेक्ट पाथ. ठीक है, अगर तुमने 10 क्वेश्चन ट्राई किए, 5 निकल जा रहे हैं तो सही जा रहे हैं. चलो क्वेश्चन 2 पूरा ही डिस्कस कर लेते हैं. आपको किसी सिस्टम की गिब्स फ्री एनर्जी गिवन है.
गिव्स फ्री एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर गिवन है। आपको निकालना है सीपी, सीवी एंड एंट्रोपी, ठीक है। इट इज गिवन टू यू that how Gibbs free energy depends on pressure and temperature. Formula is RT ln of AP over में RT की power 5/2. You need to evaluate CP, you need to evaluate CV, you need to evaluate entropy as a function of pressure and temperature. ये करो, ठीक है यार। गिब्स फ्री एनर्जी से एंट्रोपी कैसे निकलेगा, गिब्स फ्री एनर्जी से एंट्रोपी कैसे निकलेगा, देख लेते हैं। ग्रेट फिजिसिस्ट हैव स्टडीड अंडर वेरी फाइन टीचर्स। सो यहां से डीजी का फॉर्मूला VdP माइनस SdP। सो एंट्रोपी, प्रिया एंट्रोपी किसके बराबर, माइनस डेल जी बाई डेल टी एट कांस्टेंट P। ये समझ में आता है प्रिया, ये मैंने तुरंत ये कैसे लिख दिया, ठीक है। इसका मतलब अगर गिब्स फ्री एनर्जी गिवन है क्वेश्चन में एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर गिब्स फ्री एनर्जी गिवन है तो मैं गिब्स फ्री एनर्जी का पार्शियल डेरिवेटिव लेकर के एंट्रोपी निकाल सकता हूं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो अपने को पार्शियल डेरिवेटिव लेना है बच्चे, डेल बाय डेल टी लेना है, इसका लेना है RT ln ऑफ AP बाय में RT की पावर 5/2। दो बार टेम्परेचर का डिपेंडेंस दिख रहा है अपने को, पहले इसका डेरिवेटिव ले लो, इसको एज इट इज रखो, फिर इसको एज इट इज रखो, इसका डेरिवेटिव ले लो, ठीक है। चलो करो, R बाहर आ जाएगा, टेम्परेचर का डेरिवेटिव लोगे 1 आएगा, तो ln वाली टर्म एज इट इज लिख दो, AP बाय में RT की पावर 5/2। नेक्स्ट टर्म में टेम्परेचर को एज इट इज रखो, डेरिवेटिव लेना है डेल बाय डेल टी ऑफ ln ऑफ AP बाय में RT की पावर 5/2। कैसे लिखोगे इसको बताओ, मैंने सिखा भी रखा है आप लोगों को। आपको इसका डेरिवेटिव लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। सर ये AP वाली टर्म इसको दो में स्प्लिट कर लोगे, देखो इसको ऐसे लिख सकता हूं या नहीं प्रिया, ln ऑफ T की पावर माइनस 5/2 प्लस ln ऑफ बाकी सब, ऐसे स्प्लिट कर सकता हूं, बताओ बच्चे। Yes, sir. कर सकते हैं, ये चीज समझ में आई कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, यस और नो? Yes, sir. ठीक है। इसका पार्शियल डेरिवेटिव कितना होगा दूसरी टर्म का विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर? देखो ना, टेम्परेचर है ही नहीं यहाँ पे, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लोगे तो कितना आएगा, 0। इसका पार्शियल डेरिवेटिव कितना होगा बता बेटा, माइनस 5/2 तो बाहर आ जाएगा, पावर नीचे आ गई। ln T का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/T, और बाहर एक टेम्परेचर था ही, कितना आ गया बेटा, कितना आ गया, माइनस को अंदर एब्जॉर्ब करा दे तो एंट्रोपी का एक्सप्रेशन आ गया आपके पास, R बाहर ब्रैकेट बिगिन 5/2 माइनस ln ऑफ AP बाय में RT की पावर। बताओ कौन सा ऑप्शन है, C है या D है, बताओ किससे मेल खा रहा है ये? ठीक है। ऑप्शन C हो गया, समझ में आया, C इज करेक्ट एंड D इज इनकरेक्ट, समझ में आया हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है। अब इससे CP निकालना आसान है, CP कैसे निकालेंगे, CP क्या होता है, डेल्टा Q बाई डेल्टा T एट कांस्टेंट P 1 ओवर में नंबर ऑफ मोल्स, इफ नंबर ऑफ मोल इज 1 तो फॉर्मूला बस इतना हो जाता है। एंट्रोपी के टर्म्स में कैसे लिखोगे इसको, T डेल S बाई डेल T एट कांस्टेंट P। तो बस अपने को डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। सो CP बराबर T टाइम्स डेल बाई डेल T ऑफ R बाहर आ जाएगा 5/2 माइनस ln ऑफ AP बाय में RT की पावर 5/2। बताओ प्रिया, अगर डेरिवेटिव लेना सीख गए तो इसका डेरिवेटिव लेके दिखाओ जरा, आप डिक्टेट करो मैं लिखता जाता हूं। बता बेटा, 5/2 का डेरिवेटिव बोल 0. विद रिस्पेक्ट टू 0। इसको कैसे स्प्लिट करेगी बता, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है, टेम्परेचर वाली टर्म को एक साथ रख लेगी, हाँ। है ना, माइनस ln ऑफ T की पावर माइनस 5/2 को ऐसे दे दी, 5/2. और माइनस ln ऑफ बाकी सब AP बाय में R की पावर 5/2। इस बाकी सब का डेरिवेटिव कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू Zero. टेम्परेचर, 0। सही है, सही है। और इसका डेरिवेटिव कितना होगा पहली टर्म का, माइनस 5/2 नीचे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5/2 RT टाइम्स ln T का डेरिवेटिव, 1/2. T से T कट गया, CP कितना आ गया। 5/2 R. अच्छा, अगर CP 5/2 आ रहा है तो CV कितना होगा, क्या CV 5/2 R हो सकता है, इज इट पॉसिबल, इफ CP is 5/2 R क्या CV 5/2 R हो सकता है, नहीं। हो सकता आपको पता है CP is always greater than, CV. तो CV की वैल्यू will for sure be lesser than 5/2 R and hence option B is incorrect। ऑप्शन बी में क्या गिवन है, CV की वैल्यू 5/2 R गिवन है, और ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए एंड सी आर करेक्ट। समझ में आ गया ना ये सबको, यस और नो? आ गया चलो कर लो, नोट कर लो। एनएटी में बताओ क्या क्या डाउट्स हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 2 1 and 4 क्वेश्चन 1 वन and 4 सर, क्वेश्चन 1 पे चलते हैं, 1 to 3 पहले 1 पे चलते हैं। सर एक डिफरेंशिएशन में डाउट है सर। बताओ दिनेश। सर हम जब डेल क्यू की जगह TDS लिखते हैं हम्म, और टाइम मतलब टेम्परेचर का एस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो सर फिर टाइम को कांस्टेंट मतलब टेम्परेचर को कांस्टेंट मिलता है। आप ये बात समझो, आप DQ की जगह TDS लिख रहे हो ना, Q की जगह तो नहीं लिख रहे ना, तो डेल बाई डेल टी किस पे ऑपरेट कर रहा है, देखो
एक तरह से ऐसे है डेल क्यू बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी। तो आप डेल्टा क्यू को रिप्लेस कर रहे हो ना बेटा टीडीएस से, यस सर। समझ रहे हो? तो इसका मतलब आपने पूरा डीक्यू को रिप्लेस किया बाय टीडीएस, दैट इज व्हाई इट विल बी टी डेल एस बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ऐसा थोड़ी ना कि आपने क्यू को रिप्लेस करा है कि करली बाय करली टी ऑपरेट करेगा उस पे। बात समझ में आई? यस यू हैव ओके सर। रिप्लेस्ड द कंप्लीट न्यूमरेटर बाय दैट। अगर आपने सिर्फ क्यू को रिप्लेस किया होता तो आपका डाउट सही था कि डेल बाय डेल टी ऑपरेट करना चाहिए। बात समझ में आ गई ना धीरेन? यस सर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप लोग। ओके, so this question appeared in JAM 2017. किसी का हुआ? Anyone? Any Yes, sir. student? अनीशा का हो गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगर ये क्वेश्चन हो गया तो बहुत अच्छी बात है। देखो क्या गिवन है, starting with this TDS equation, starting with first and second law of thermodynamics, TDS equal to du plus PdV, and using appropriate Maxwell relation along with the expression of heat capacity, the derivative del P by del T at constant S for a substance can be expressed in terms of Cp, density, coefficient of volume expansion and temperature. देखो क्या गिवन है, आपको ये बोला हुआ है कि del P by del T at a constant S, this can be written as a function of Cp, then density rho, coefficient of volume expansion beta and temperature, right? तो पहले तो हम यही करते हैं कि एक बार हम इसको एक्सप्रेस कर लेते हैं एज अ फंक्शन ऑफ दीस 4 पैरामीटर्स। उसके बाद आप ध्यान से देखो, Cp की वैल्यू गिवन है, रो की वैल्यू गिवन है, बीटा की वैल्यू गिवन है एंड टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है। आपको इसकी वैल्यू निकालनी, जो कि आपको गिवन है n टाइम्स 10 की पावर 7 पास्कल, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन। ठीक है, पास्कल पर केल्विन। तो आपको n की वैल्यू बताना। Cp इज स्पेसिफिक हीट, Cp की जो वैल्यू गिवन है दैट इज 2010 जूल पर केजी पर केल्विन। रो की जो वैल्यू गिवन है दैट इज 10 की पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। एंड आइसोबारिक वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी की जो वैल्यू गिवन है दैट इज 1.6 into 10 की पावर -4 केल्विन इनवर्स। टेम्परेचर इज 270 Kelvin. This all is provided to you. So let me begin. Cp, इस यूनिट को देख के मुझे पता लगा कि Cp इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। सो Cp का जो फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट्स, दैट विल बी 1/m del Q by del T at constant P. If I rewrite this in terms of entropy, so it will become T by m del S by del T at constant P. तो Cp का तो फॉर्मूला ये हो गया। Let me call it to be equation number 1. Density is mass per unit volume. Then let me call it to be formula number 2. Then isobaric volume expansivity. ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं by using symbol alpha p. Maybe I have skipped this topic in your chapter 3. ठीक है, here it is denoted using symbol beta. यहाँ पे इसके लिए सिंबल यूज किया हुआ है बीटा। तो आइसोबारिक वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी का फॉर्मूला जो होता है स्टूडेंट्स, जो आपको याद करना होगा, दैट इज 1/v del V by del T at constant P. 1/v del V by del T at constant P. If I try to bring entropy here, तो कोई बता सकता है कि मैं इस डेरिवेटिव में अगर एंट्रोपी लाना चाहता हूं तो कौन से रिलेशन की हेल्प लूं? मुझे इस डेरिवेटिव को हटा के एंट्रोपी जैसा कुछ लेके आना है, तो किस, SVTP. है ना, एसवीटीपी वाले की जो नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है मैक्सवेल रिलेशन? नेगेटिव। बताओ किसके बराबर होगा, आप लोग ही बोल के बताओ क्या होगा इसकी जगह, क्या Del S Del S by by del del P. विद नेगेटिव साइन ना, del S by del P at constant T with a negative sign. Let me call this to be equation number 3. knowledge number 3. तो आप ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, मुझे इस वाले डेरिवेटिव को लिखना है एज अ फंक्शन ऑफ Cp रो बीटा इन T. Cp में देखो कौन सा डेरिवेटिव है और बीटा में देखो कौन सा डेरिवेटिव है। इन तीनों डेरिवेटिव्स में क्या कॉमन बात है, जरा देख के बताओ। इस वाले डेरिवेटिव में, इस वाले डेरिवेटिव में और इस वाले डेरिवेटिव में, इन तीनों डेरिवेटिव्स में एक कॉमन बात है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इन तीनों डेरिवेटिव में एक कॉमन बात है। Euler relation. इन तीनों डेरिवेटिव में ध्यान से देखो, प्रेशर, टेम्परेचर और एंट्रोपी उन्हीं को आगे पीछे घुमा रखा है। ये सब Yes, प्रेशर, sir. टेम्परेचर और एंट्रोपी उन्हीं को आगे पीछे घुमा रखा है। इसका मतलब अगर मैं इसकी हेल्प लूं तो बात बन जाएगी, ऑलर्स रिलेशन फॉर प्रेशर, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। बताओ कैसे लिखेंगे? पहले तो सीधा सीधा यूज कर लो, PTS, PTS टाइम्स, नेक्स्ट क्या होगा, TSP, TSP, नेक्स्ट क्या होगा, P. SPP,
P T। ये तीनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? -1। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या रखूं? देखो निकालना क्या है, ये डेरिवेटिव निकालना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में इसको रिटेन रखो, राइट हैंड साइड में इन दोनों को ले जाओ। अब देखो डेल एक्स बाई डेल पी तो मुझे यहाँ दिख गया, बट डेल एक्स बाई डेल टी देखने के लिए इस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाऊंगा। कैसे लिखूंगा इसको? उलट के लिख दो, डेल एक्स बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी ओवर में डेल एक्स बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी। ये नेगेटिव इसकी जगह यहाँ रख दो। बताओ इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, न्यूमरेटर की जगह क्या लिख सकते हैं? देखो क्या आएगा न्यूमरेटर यूजिंग इक्वेशन 1, न्यूमरेटर की जगह क्या लिख सकते हैं बताओ? एमसीपी बाई में टी, सही है, एमसीपी बाई में टी। डिनोमिनेटर की जगह बताओ क्या लिख सकते हैं? देखो आप लोग ही बताओ, देखो ना, डिनोमिनेटर की जगह क्या लिख सकते हैं? वी टाइम्स बीटा बी वी टाइम्स बीटा, माइनस तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, वी टाइम्स बीटा। सो ये बेटा ये बन गया एम सी पी बाई में टी वी बीटा। एम बाई वी की जगह क्या लिख सकते हो? रो। सो देयरफॉर ये पार्शियल डेरिवेटिव इज इक्वल टू रो सी पी बाय टी बीटा। अब क्या करोगे? सबकी वैल्यू पुट कर दो, रो की वैल्यू पुट करो 10 की पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब, सीपी की वैल्यू 2010 जूल पर केजी पर केल्विन ओवर में टेम्परेचर 270 केल्विन, बीटा 1.6 इंटू 10 की पावर -4 केल्विन इनवर्स। बताओ कितना आ रहा है ये नंबर? निकालो सब लोग। कितना आ रहा है बेटा अनीशा? 4.65 इंटू में 10 की पावर 7 10 7 7, ओके ओके ओके, 4.65 इंटू में 10 की पावर 7, फाइन, 4.65 इंटू में 10 की पावर 7। So therefore your answer is 4.65। नोट कर लो इसको, अच्छा क्वेश्चन था ये, मतलब ये मैं एक्सपेक्ट कर सकता था कि बच्चों को डाउट आएगा। नेक्स्ट So question 2 and 4. मितेश, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर 4 2 and 4। सर 3 2 and 4 जल्दी नोट करो बेटा सब लोग। डन सर। डन, बाकी लोग Done, sir. डन? Yes, sir. डन चंदा, गुड, ठीक है। ओके जी, सो क्वेश्चन नंबर 2, किसी का हुआ क्वेश्चन 2? एनीवन? यस सर यस सर। गुड महिमा, वेरी गुड, बाकी लोग भी वेरी गुड, ठीक है, 3-4 स्टूडेंट्स बोल पा रहे हैं यस, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग, एनर्जी डेंसिटी एंड प्रेशर ऑफ फोटोन गैस आर गिवन टू यू। सो एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि स्मॉल यू से डिनोटेड है यहाँ पे, इट इज ए टी की पावर 4। सो इंटरनल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आ गया वो ए टी की पावर 4 वी आ, इक्वेशन नंबर 1। एंड प्रेशर P इक्वल टू U बाई में 3, तो 1 बाई में 3 U बाई में V, सो PV बराबर U बाई में 3। नॉलेज नंबर 2, तो ये दो फॉर्मूले आ गए, ऐसा कुछ, where A is some constant, T is temperature, entropy per unit volume is given by, so it is given to you that entropy per unit volume is alpha A T की पावर 3। आपको बताना है अल्फा किसके बराबर, ठीक है। सो आपको U गिवन है एज अ फंक्शन ऑफ T एंड B, आपको निकालना है एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ T एंड B, एंट्रोपी इक्वल टू अल्फा A T की पावर क्यूब। समझने की कोशिश करो कि गिवन क्या है, गिवन है U एज अ फंक्शन ऑफ T एंड B, निकालना क्या है?
यू नीड टू डिटरमाइन, और साथ में अगर ध्यान से देखूं तो मैं इसमें u को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, तो 1/3 a t की पावर 4 v, सो इससे ये कट गया, सो p इक्वल टू 1/3 a t की पावर 4। तो आपको p भी गिवन है एज अ फंक्शन ऑफ t and v, ये दो नॉलेज गिवन, p एज अ फंक्शन ऑफ t and v। सो आपको निकालना है s एज अ फंक्शन ऑफ t and v। ये टास्क है, फ्रॉम प्रेशर एंड इंटरनल एनर्जी यू नीड टू डिटरमाइन s एज अ फंक्शन ऑफ t and v। कैसे स्टार्ट करें? एक मेथड है कि वी कैन यूज कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। क्या होता है कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ? बताओ। TdS इक्वल टू du PdV प्लस PdV, सही है। अच्छा u गिवन है यार, गिवन है u, तो इससे du निकाल सकते हो क्या? देखो u इक्वल टू a t की पावर 4v, तो du कौन बच्चा मुझे करेक्टली बता रहा है? du किसके बराबर होगा? करेक्टली बोलना, इजी है यार। इफ u बराबर a t 4v, तो du किसके बराबर होगा? करेक्टली बोलना। 4a t cube v 4a t क्यूब, 4a t क्यूब v t cube v dt प्लस plus a t की power 4 a t की dv। पावर 4 dv। वेरी गुड, सब्स्टिट्यूट कर दो इसको यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट कर दो, देखो क्या मिलता है। सो TdS बराबर 4a t क्यूब v dt प्लस AT4 dv प्लस PdV, p की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो 1/3 AT4 dv। इन दोनों टर्म्स को क्लब कर दो, 1 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा? 4/3, 4/3 a t की पावर 4 dv प्लस 4a t क्यूब v dt इक्वल टू TdS। टेम्परेचर काटना है तो टेम्परेचर की एक पावर यहां से हटा दो, तो टी क्यूब की जगह आ जाएगा टी स्क्वायर, इसकी जगह आ जाएगा टी क्यूब। आपको निकालना है एंट्रोपी, सो इंटीग्रेट इंटीग्रेट इंटीग्रेट, सो एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम कितना आ जाएगा? देखो, व्हेन यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट हियर, यू आर गोइंग टू कंसीडर वॉल्यूम एज कांस्टेंट, वॉल्यूम विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, सो 4a v बाहर आ जाएगा, 4a v विल कम आउट ऑफ द इंटीग्रल, टी स्क्वायर का इंटीग्रल विल गिव यू टी क्यूब बाय में 3 प्लस, जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे यू आर गोइंग टू ट्रीट टेम्परेचर एज कांस्टेंट, सो यू विल गेट अगेन 4/3 a t क्यूब, तो यहां से भी वही मिला, यहां से भी वही मिला, 4a v t क्यूब बाय में 3, सो देयरफॉर अल्फा इज 4 बाय में 3। ठीक है, अल्फा इज मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज एज फॉलोज कि फ्रॉम हियर व्हाट यू कैन कंक्लूड इज एज फॉलोज कि del s बाय में del t एट कांस्टेंट v बराबर 4a t स्क्वायर v। So entropy as a function of temperature and volume, it will be equal to 4AV बाहर T square dt का integral. So it is 4AV T cube by में. So alpha is 1 point. That's the, or you might have proceeded like this also. कि del S by del V at constant T, it is equal to 4 by में 3 A T. So S, it is equal to 4 by में 3 A T cube dV का integral. So 4 by 3 A T cube. So alpha comes out to be 1.3. Next. Sir? Yes. सर हम डायरेक्ट डेल एस की जगह डेल वी की टर्म में लिख सकते थे ना, इसमें यू के एक्सप्रेशन, डेल यू के एक्सप्रेशन। सीधा हम डेल एस है उसको हम वी डेल वी की टर्म में डायरेक्ट लिख देते, देन वी डेल वी कॉमन आ जाता, देन डेल यू बाय डेल वी। हाँ मतलब सीधा हम ds को लिख सकते थे, ds को बोल रहे हो ना आप? यस सर। हाँ बिल्कुल कर सकते थे, कंपेयर कर सकते थे, तो उससे तुरंत आ जाता। ठीक है, वेरी गुड। सर एक और तरीका सर शायद बता दो एक बार, सही है कि नहीं? हाँ नमन बोलो। सर हमें पता है कि एस अपॉन वी निकालना है, तो हम अगर मैक्सवेल रिलेशन लगाएं डेल एस बाय डेल वी इज इक्वल टू डेल पी बाय डेल टी वाला, हाँ यस सर। ओके तो उससे भी सीधा आंसर आ रहा है ओके, सर। एक मैक्सवेल रिलेशन है SPTV वाला। चलो तो del s by del v एट कांस्टेंट t बराबर del p by del t एट कांस्टेंट v। हाँ फिर आगे। सर इसके बाद हमें जैसे p गिवन है कि a t टू द पावर 4/3, हाँ p ये है, सही है। तो अब हमने राइट साइड को सॉल्व किया, उसके राइट बाद हैंड साइड को निकाला तो ये आया 4/3 a t क्यूब आ गया। हाँ जी सही है, सर, बहुत बढ़िया, बहुत अरे मजेदार, वेरी गुड, यस सर, एक लाइन ब्रिलियंट। उसके बाद तो यहाँ से इंटीग्रेट तुरंत आ गया कि एंट्रोपी विल बी 4 अरे वेरी गुड, मजा ही आ गया। सो अल्फा इज 4/3, मेथड 2, बहुत बढ़िया, वेरी गुड नंबर, वेरी गुड। चलो गुड। क्वेश्चन नंबर 4, किसी का हुआ 4? एनीवन? यस सर। 4 हो गया सर, हो गया। थर्ड भी इजी था, थर्ड भी इजी था। ठीक है, क्वेश्चन 4 देख लेते हैं क्या डाउट आ रहा है, कर लो जल्दी से, नोट करो क्वेश्चन पे। सर थर्ड क्वेश्चन में n की पावर 2 नहीं आ रही, r की पावर 2 आ रही है। एन आर पूरे की पावर 2 नहीं आ रही? अच्छा यस सर। नहीं नहीं, पूरे की आएगी, यस सर। पूरे की आएगी बेटा। वो आप जो क्या कर रहे हो मैं बता देता हूँ। इसमें आप
Cp माइनस Cv की जो एक्सप्रेशन आप स्टार्ट कर रहे होगे वो आप इससे शुरू कर रहे होगे, Cp माइनस Cv इक्वल टू T बाई में n del P बाई del T एट कांस्टेंट V एंड del V बाई del T, इससे शुरू कर रहे होगे आप, है ना, यस सर। जिसकी वजह से आपका ऐसा कुछ आ रहा होगा आंसर nR2 और बाकी जो भी है, ठीक है, nR2 T बाई में PV, ऐसा कुछ आ रहा होगा, T बाई में PV, सही है, यही आ रहा होगा। यस सर। So you need not to start from this relation, rather you have to start from this relation, Cv minus Cv equal to T times del P by del T at constant V del V by del T at constant T. Reason being कि Cp और Cv molar heat capacities ना होकर के, they are not molar heat capacities in this question, they are only heat capacities. So since they are heat capacities, so therefore your formula will be this, only this. इससे शुरू करना होगा आपको, Cp Cv molar heat capacities ना होकर के, they are only heat capacities. That is why you have to start from this relation. ठीक है, इस क्वेश्चन में मेंशन करना चाहिए कि Cp Cv आर हीट कैपेसिटीज, दे आर नॉट मोलार हीट कैपेसिटीज, दे आर हीट कैपेसिटीज। मतलब कि बेटा Cp और Cv का जो फॉर्मूला है दैट इज T del S by del T at constant V, एंड Cv का जो फॉर्मूला है दैट इज T del S by del T at constant V। और हमने जो ये रिलेशन डिराइव किया था वो ये अज्यूम करते हुए डिराइव करा था कि दे आर मोलार, तो हमने डिवाइड बाय n करा था। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे आर नॉट मोलार, दे आर ओनली हीट कैपेसिटीज। हीट कैपेसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस, पर यूनिट मोल नहीं बोला जाता वहां पे। समझ में आया या दोबारा बताऊं? यस सर, आ गया समझ। आ गया, ठीक है, महिमा आ गया, यस सर। ठीक है, चलें आगे चले, कर लिया नोट क्वेश्चन 2, कर लो, Yes, sir. Yes, sir. डन। चलो क्वेश्चन 4 पे चलो। देखो 4 देखो, for a gas that obeys this equation of state where A and B are some constants, R is universal gas constant, what is del U by del V at constant T depending on pressure, अल्फा की वैल्यू बतानी, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ स्टेट आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 में, that is P equal to ART square by में V minus B. So therefore the gas is neither it is ideal gas nor it is van der Waals gas, this is some arbitrary real gas, ठीक है। तो सिस्टम is some arbitrary gas, whose equation of state is given to me, P equal to AR T square by में V minus B. Let me call it to be equation number 1, right? Where A and B are constant and R is some universal. आपको निकालना है del U by del V at constant T. It is given that it is depending on pressure as P की power alpha. So you need to tell me what is alpha. बताओ कैसे निकालेंगे del U by del V at constant T? एक इक्वेशन आपको रखवाई थी, एनर्जी। चलो देखते हैं। अब बताओ एनर्जी इक्वेशन क्या है? P plus K del U by del V at constant temperature is equal to T times del P by del T at constant volume. चलो देखते हैं। सो लिखते हैं, मैं एक इक्वेशन लिख लेता हूँ, P प्लस करली U by करली V at constant T इक्वल टू T टाइम्स del P by del T at constant V। तो ये डेरिवेटिव निकालना है। इस डेरिवेटिव को निकालने के लिए आई विल सीक हेल्प ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को देखते हुए बताओ del P by del T at constant V। मितेश ने पूछा है, मितेश बताओ del P by del T at constant V। बाकी लोग शांत रहो। मितेश, Sir, 2 व्हाट विल बी दिस ART, डेरिवेटिव? 2 क्या होगा? ART upon 2 V minus ART B. by में V minus B। सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा इसको यहाँ पे। So you will get P plus del U by del V at constant T बराबर T times 2 ART by में V minus B। ठीक है मितेश, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. कहाँ गया? तो देखो ART का स्क्वायर बाय V minus B, उसकी जगह लिख सकते हैं प्रेशर, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ प्रेशर। So del U by del V at constant T that will be 2P minus P, तो P के बराबर आ गया। So therefore अल्फा की वैल्यू इज, सही है? ऐसे ही किया था आप लोगों ने भी स्टूडेंट्स? Yes sir. Yes, Yes, sir. sir. चलो, so MSQ and NAT is done from my side. Now let me proceed for MCQ section. कर लो ये नोट and then tell me your doubts from MCQ. शुरू के 10 क्वेश्चंस में बताओ किस किस में डाउट आया, 1 से 10। Question 1. 1, 2 8. Eight. and 8. 1 2 and 8, 1 2 and 8, that's it? First, second and 8, okay, good. Let's see first, second and 8। इरेज कर दूं मितेश? Yes, sir, कर दो. डन, ओके।
चलो फर्स्ट देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 1। A white dwarf star has volume V and number n electrons, so that number density is capital N by capital V. N is not a number of moles here, it is number density. This question appeared in JAM 2017. Taking the temperature of the star to be 0 Kelvin, average energy per electron is इतना. तो एवरेज एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन तो ये गिवन है आपको U by में n, जिसको अपसलन नॉट से डिनोट किया हुआ है. इट इज 3 h square by में 10m टाइम्स 3 pi square n की पावर 2 by में 3. So I can rewrite small n as capital N by capital V. ये गिवन है आपको. So U equal to, if I multiply by n, so ऐसा कुछ आ जाएगा 3 h square by में 10m 3 pi square की पावर 2 by 3, ये सब तो कांस्टेंट है, टाइम्स n की पावर 2 by 3 में ऐड हो गया, that will give you 5 by 3 by में v की पावर. So this is equation number 1 form. This is U का डिपेंडेंस ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड वॉल्यूम. ये गिवन. आपको निकालना है इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर ऑफ द स्टार, P निकालना है, U से P. ठीक है, यू आर गिवन इंटरनल एनर्जी, आपको निकालना है प्रेशर का एक्सप्रेशन. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर ऑफ द स्टार. बताओ कैसे निकालें. U गिवन है, P निकालना है. एनीवन एनी आइडिया? U गिवन है, P The निकालना combined form of first and second. है, एंड दैट इज TdS इक्वल टू du प्लस PdV. उससे क्या होगा? सर अगर du को लेफ्ट हैंड साइड मतलब du का रिलेशन ले ले तो del u by del v करके माइनस p आ सकता del U by del V करके माइनस किया जाता है. मतलब आई डिडंट गेट यू, समझ है. नहीं आया. मतलब du का रिलेशन लेके पार्शियल डेरिवेटिव करके p फाइंड आउट कर सकते हैं और वही p इलेक्ट्रॉन्स का प्रेशर होगा. ओके, एनीवन एल्स? Sir, P is equal to minus del U by del V. P इक्वल टू Minus del U by del V. P इक्वल टू माइनस del U by del V होता है. कैसे होता है? कैन यू प्रूव इट? P इक्वल टू माइनस del U by del V. So that constant ASM. कैन यू प्रूव दिस कि ये होगा? दोनों इक्वेशन को डिफरेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे फिर ठीक है, मतलब सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो. मितेश ने भी सही बोला, आप भी सही बोल रहे हो. कंबाइंड फॉर्म ऑफ वी कैन यूज, बिल्कुल सही बोल रहे हो. कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दोनों नहीं सही बोला. तो कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज दिस: TdS इक्वल टू du प्लस PdV माइनस का म्यू dN. सो du इक्वल टू TdS माइनस PdV प्लस म्यू dN. So if U is a function of S, V and N, then du बराबर ये तीन पार्शियल डेरिवेटिव, del U by del S at constant V comma में N ds plus del U by del V at constant S comma में N dV plus del U by del N at constant S comma में V dS. So if I compare these two star equations, सही है ना मितेश? यही बोल रहा था. So if I compare these two star equations, pressure will come out to be equal to minus del U by del V at constant S comma में N. सही है. तो U का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट एंट्रोपी एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स. सो P बराबर माइनस डेल बाय डेल V लेना है बेटा. तो बाकी सब एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट है. 3 h स्क्वायर बाय में 10m 3 पाई स्क्वायर की पावर 2 by 3 n की पावर 5 by 3 एज इट इज रहेगा. बस V की पावर माइनस 2 by 3 का डेरिवेटिव लेना है. सो दैट विल बी माइनस 2 by 3 V की पावर माइनस 5 by 3 होता है. सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, एक नीचे 5 बचेगा, प्लस का साइन आ जाएगा, h स्क्वायर बाय में 5m 3 पाई स्क्वायर की पावर 2 by 3 n by V की पावर 5, which is small n की पावर 5 by 3, small n की पावर 5 by 3. So this matches with, देख लो. So you have to replace by epsilon naught also. You have to replace by U by V, and then you need to match your final answer कि किसके बराबर आए. So pressure by में epsilon naught. So that will give you h cut square by में 5m 3 pi square की पावर 2 by 3 n by V की पावर 5 by 3 ओवर में 3 h cut square by में 10m. मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ एप्सिलॉन नॉट को. 3 pi square की पावर 2 by 3 एंड n by V की पावर 2 by 3. तो देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है. 3 pi square h cut square small m गेट्स कैंसल्ड. यहाँ से ये एक 2 का फैक्टर बचेगा. सो 2 by में 3 n by V की पावर 1. So 2 by 3 small. So therefore pressure comes out to be 2 by 3 small n. देखो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है ये? ऑप्शन डी हो गया. ऑप्शन डी इसका ये करना था. सही बोला था आपने कि प्रेशर निकल जाएगा फ्रॉम कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड.
नोट कर लीजिए। डन सर। डन। चलो चलो क्वेश्चन 2 देखिए। entropy of system of n particles at temperature T is given by a relation S equal to A nu v की power 1/3, where u and v are energy and volume and A is some constant. So equation number 1, if temperature changes to 4T at constant volume, then internal energy becomes कितना? Given that T changes from T naught to 4T naught, तो आपको पूछा है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिकम्स कितना। तो यू नॉट चेंजेस टू यूएफ, तो यूएफ इज कितना टाइम्स यू नॉट, ये पूछा गया। सो इन ऑर्डर टू आंसर दिस आपको निकालना पड़ेगा यू एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, देखो समझ लो दिया क्या हुआ है। इट इज गिवन टू यू दैट हाउ एंट्रोपी डिपेंड्स ऑन यू वी एन एन। टेम्परेचर 4 गुना हो रहा है, इंटरनल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। इन ऑर्डर टू आंसर दिस यू नीड टू डिटरमाइन, आपको निकालना है अ रिलेशनशिप बिटवीन u एंड t। तो आपको निकालना है u एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, या इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, t का डिपेंडेंस निकालना है ऑन इंटरनल एनर्जी। s से t कैसे आ सकता है, s से t निकालना है, कैसे आ सकता है देख लेते हैं। कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। TdS बराबर du प्लस PdV माइनस का म्यू डी। सो ds बराबर 1/t du प्लस p/t dv माइनस म्यू बाई टी डी। सो 1/t किसके बराबर हो जाएगा, कौन से पार्शियल डेरिवेटिव के, बताओ आप लोग। 1/t कौन से, इट विल बी इक्वल टू कर्ली s बाय कर्ली u एट कांस्टेंट VNN तो इसका मतलब अगर मैं s का पार्शियल डेरिवेटिव कर दूं विद रिस्पेक्ट टू u कीपिंग v एन कांस्टेंट, आंसर आ जाए। तो a बाहर और n और v का डिपेंडेंस बाहर, आपको डेरिवेटिव लेना है ऑफ u की पावर 1/3 का। u की पावर 1/3 का डेरिवेटिव इज 1/3 u की पावर -2/3। तो ऐसा कुछ आ गया। सो देयरफॉर यू गेट 1 ओवर में t इक्वल टू a n v की पावर 1/3 ओवर में 3 u की पावर 2/3। और यू कैन रीराइट दिस इक्वेशन लाइक दिस, u की पावर 2/3 बराबर, ठीक है, a n v की पावर 1/3 टाइम्स t, राइट, बाय में 3। और यू कैन से u बराबर a n v की पावर 1/3 ओवर में 3 इस पूरे की पावर 3/2 टाइम्स t की पावर 3। So if temperature becomes 4 times, internal energy will change to 4 की पावर 3/2 initial interval. 4 की पावर 3/2 is 8. So internal energy changes to 8 times of its initial value. So internal energy changes to 8 times of its initial value. So option C is correct. सही है, ऐसे ही किया था जिसका निकल गया था। Yes or no? Yes, So sir. first is done, second is Yes, sir. done। 8th पे आ जाते हैं। किसी का हो पाया 8th, anyone, any student? Yes, sir. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है 8th में डाउट आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, हो गया तो बहुत बढ़िया। जल्दी से नोट करो।
Done, sir. डन। देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो। अगर इसमें मैं ऑप्शंस को देखो ध्यान से देखूं तो ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, इन दोनों की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए मुझे ये सब चेक करना पड़ेगा, माइनस प्लस टी डेल टू बाय में डेल टी स्क्वायर ऑफ एफ बाई टी एट कॉन्स्टेंट बी। और ऑप्शन सी और डी अगर हम ध्यान से देखें तो इनकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए अगेन आई नीड टू चेक समथिंग लाइक दिस, टी स्क्वायर डेल बाय डेल टी ऑफ एफ बाई टी एट कॉन्स्टेंट। सो बात आती है कि शुरू कैसे करें, ठीक है, कर तो आप लोगों ने लिया होगा, बट ये शुरू कैसे करें, इस क्वेश्चन को सोल्व करना एग्जाम में शुरू, ये दिमाग में कैसे आएगा कि यार ऐसे शुरू करना है। देखो अगर इन सब में मैं कुछ कॉमन ढूंढूं तो वो ये है कि मुझे ये तो निकालना ही पड़ेगा, डेल बाय डेल टी ऑफ एफ बाई टी एट कॉन्स्टेंट वी। अगर मान लीजिए ये u बाई टी स्क्वायर के बराबर आ जाता है तो आइदर सी इज करेक्ट और डी इज करेक्ट। मान लो सी और डी दोनों ही करेक्ट नहीं है, फिर एक और बार पार्शियल डेरिवेटिव लूंगा और फिर ए और बी चेक करूंगा। सो लाइक दिस आई एम थिंकिंग कि ऐसे में शुरू करने वाला हूं। तो लेट्स बिगिन। एफ बाई टी, एफ किसके बराबर होता है, एफ को इंटरनल एनर्जी के टर्म्स में लिख के बताओ, एफ की जगह क्या लिखोगे, फॉर्मूला बताएं। U minus TS. सही है, u माइनस टी एस बाई में टी, ये पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं एट कांस्टेंट। चलो स्टार्ट करते हैं। तो डेल बाई डेल टी लेना है u बाई टी का, माइनस टी से टी कट गया तो डेल एस बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी। इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो इसमें दो टर्म दिख रही है, एक u और एक t। पहले ले लेते हैं u के रिस्पेक्ट में, t को एज इट इज रखते हैं, तो डेल u बाई डेल टी एट कांस्टेंट v माइनस डेल s बाई डेल टी एट कांस्टेंट v। सॉरी नेक्स्ट, u को एज इट इज रखो, 1 बाई टी का अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो दैट विल गिव यू माइनस 1 बाई में टी स्क्वायर एंड दिस टर्म एज इट इज। अगर आप ध्यान से देखें तो पहली टर्म और तीसरी टर्म क्या ये दोनों सेम नहीं है। सीवी को कैसे डिफाइन करते हैं हम, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वी, ऐसे डिफाइन करते हैं। अगर आप इसको एंट्रोपी के टर्म्स में लिखोगे तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा, अगर आप इसको इंटरनल एनर्जी के टर्म्स में लिखोगे तो डेल्टा क्यू की जगह डेल्टा यू आ जाएगा सीधा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो डेल एस बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी किसके बराबर होगा, 1 ओवर में टी डेल यू बाई डेल टी। तो ये वाली दोनों टर्म्स ऐड करके आपको जीरो दे देंगी एंड हेंस यू आर लेफ्ट विद डेल बाई डेल टी ऑफ एफ बाई टी एट कांस्टेंट वी इट इज इक्वल टू माइनस यू बाई में टी। तो देख लो किससे मेल खा रहा है, ये ऑप्शन सी से मैच हो रहा है या ऑप्शन डी से। आई थिंक नेगेटिव वाला करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज रॉन्ग एंड देयर बाय इन दिस ऑप्शन सी। ऐसे करना चाहिए, सिंपल। हो सकता है किसी ने आंसर निकाल दिया हो बट थोड़ा लॉन्ग चला गया हो, ठीक है, फेयर इनफ, कोई दिक्कत नहीं है। 11 से 20 बताओ किस क्वेश्चन में डाउट है, 11 से 20। Sir, 20. 20 गुड, 16 16 ओके, Question 17. 16 and 20 that's it। 17. 17 ओके, जल्दी से नोट करो। Sir, question 10. क्वेश्चन नंबर 10th, ठीक है, अभी 10th छोड़ सकते हैं, बहुत इजी है वैसे, बता दूंगा, बट अभी मैंने वो एक छोटा सा टॉपिक लिया नहीं है तो 10th अभी स्किप कर सकते हैं। 16th 17th 20th इरेज कर दूं, Yes, sir. चलो आगे प्रोसीड करते हैं। 16th फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी कौन सी फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी या हेल्महोल्ट्ज, बताया नहीं एग्जामिनर ने, कौन सी लेके चलोगे इसको बताओ। 16th में आपको बताया नहीं है कौन सी फ्री, सिंबल से देख लोगे ना, तो इसका मतलब एफ गिवन है तो हेल्महोल्ट्ज कंक्लूड करोगे कि इट इज हेल्महोल्ट्ज एनकेबीटी ln ऑफ ए नॉट वी केबीटी की पावर 5/2 डिवाइडेड बाय में n। लेट मी कॉल इट टू बी इक्वेशन नंबर 1। आपको निकालनी है इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। अगर सारे ऑप्शंस को देखूं तो एज अ फंक्शन ऑफ P V and N। आपको गिवन है F एज अ फंक्शन ऑफ P V and N, गिवन है क्वेश्चन में F एज अ फंक्शन ऑफ P V and N। आपको निकालना है U एज अ फंक्शन ऑफ P V and N। F और U में क्या रिलेशन होता है, अभी बताया था आप लोगों ने, F equal U minus TS. U माइनस टी एस, तो U बराबर F प्लस टी एस। आपको F तो गिवन है क्वेश्चन में एज अ फंक्शन ऑफ P V and N, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है, टेम्परेचर से भी कोई दिक्कत नहीं है, बस अगर एंट्रोपी में निकाल लूं
और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं तो इंटरनल एनर्जी आ जाएगी। इसका मतलब अगर F से किसी तरह मैं S निकाल पाऊं एज अ फंक्शन ऑफ P V N N, तो मैं उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं तो बात बन जाएगी। ऐसे चलना है अपने को। U इक्वल टू F प्लस TS होता है, F दिया हुआ है उसको मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, टेम्परेचर से कोई दिक्कत नहीं है उसको पड़ा रहने दूंगा, और एंट्रोपी निकाल के सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। F और S सब्स्टिट्यूट करने के बाद U आ जाएगा। अब F से S कैसे निकालें, ये क्वेश्चन है। F से S कैसे निकालें, कोई मेथड है जिससे F से S आ जाए? देख लेते हैं। ग्रेट फिजिसिस्ट हैव स्टडीड अंडर वेरी फाइन टीचर्स। DF किसके बराबर बता दो, बताओ माइनस किसी को देख के बताओ। SDT माइनस SGT, माइनस का PT KDV और प्लस का µD, ये तो सब में ऐड ही होता है। तो हाँ एंट्रोपी आ सकता है। एंट्रोपी कौन से पार्शियल डेरिवेटिव के बराबर होगा बताओ? S इक्वल टू del F माइनस डेल माइनस एफ बाई डेल टी डेल डी एफ बाई बाई डेल डेल टी टी एट कांस्टेंट कांस्टेंट बी एन एन VNN Vn। सही है। इसका मतलब अगर मैं डेरिवेटिव ले लूं, वो भी नेगेटिव पार्शियल डेरिवेटिव डेल बाई डेल टी ले लूं f का एट कांस्टेंट Vn तो बात बन जाएगी। बस अब f को सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, तो माइनस डेल बाई डेल टी लेना है मेरे को, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, n के भी बाहर आ जाएगा। इसका लेना है p टाइम्स ln ऑफ a नॉट v kVt की पावर 5/2 ओवर में। इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। चलो हेल्प करवाओ, डेरिवेटिव निकलवाओ। आप लोग बताओ, मैं आई विल रिमेन क्वाइट, यू गाइड मी, आई विल राइट। बोलो पार्शियल डेरिवेटिव लेना है इसका, ln को स्प्लिट कर देंगे बताओ ना बच्चों। पहले t का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, ln वाली टर्म को एज इट इज रखेंगे। t का पार्शियल डेरिवेटिव कितना होगा? 1। तो ln वाली टर्म में एज इट इज रख लेता हूं। नेक्स्ट टर्म में t को एज इट इज रखेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव करना है ln वाली टर्म का। ln वाली टर्म को दो में तोड़ लोगे, एक तो टेम्परेचर का डिपेंडेंस और डिपेंडेंस ऑन बाकी सब। बताओ इसका पार्शियल डेरिवेटिव कितना होगा इस टर्म का विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, कितना होगा इसका पार्शियल डेरिवेटिव? 0 0। इसका पार्शियल डेरिवेटिव बताओ कितना होगा? 5/2 बोलो ना यार, 1/2 q वाली पावर तो नीचे आ जाएगी। और ln t का डेरिवेटिव कितना होगा? 1/2 1/t। तो देयरफॉर एंट्रोपी का एक्सप्रेशन आ गया। बस अब इसे सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे। सो देयरफॉर u इक्वल टू f प्लस ts। f को सब्स्टिट्यूट करो ऊपर से इक्वेशन 1 से, माइनस n kBt ln ऑफ a नॉट v kBt की पावर 5/2 डिवाइडेड बाय में n प्लस t टाइम s, तो प्लस t टाइम्स n kBt टाइम्स ln ऑफ a नॉट v kBt की पावर 5/2 डिवाइडेड बाय में प्लस 5/2। देखो क्या कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एड्स टू गिव यू 0। आपके पास क्या बच गया सर? 5/2। 2 NKBT कौन सा ऑप्शन है देखो, ए या बी, कौन सा ऑप्शन है, चेक करो जल्दी से। ठीक है, तो ऐसे करना था। क्वेश्चन 16 डन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नोट करो इसको सब लोग, अच्छा क्वेश्चन है ये, प्रोबेबल है ये क्वेश्चन। सेवनटीन्थ भी अभी छोड़ सकते हैं, वही 10th वाला एक छोटा सा कंसेप्ट है, देख लेंगे। एक्चुअली ये है कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम पे गिब्स फ्री एनर्जी, वो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी विल गेट मिनिमाइज्ड, तो मिनिमम पे df by d psi विल बी 0। तो आपको डेरिवेटिव लेके उसको 0 के बराबर पुट करना है बस। ठीक है, हाँ सर यस। सर जब इक्विलिब्रियम बोला हो तो हम डायरेक्टली डेल टी और डेल वी को 0 नहीं ले सकते, बिकॉज इक्विलिब्रियम तभी होगा। नहीं, एक्चुअली एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो मैंने अभी कन्वे नहीं किया आप लोगों को, इसलिए 10th और 17th पे भी रुको आप लोग। ठीक है, ओके सर। हाँ। चलो आगे चलते हैं 20th टॉपिक, 20th क्वेश्चन, JNU 2013। अच्छा क्वेश्चन है, किसी का हुआ ये? अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। हो गया सर। चलो गुड, जल्दी से नोट करो 16th। डन करो यार, जल्दी करो, चलो कर लो, कर लो, बाकी लोग भी कर लो।
चलो 20 देखते हैं. The equation of state of an ideal gas is given to you. P equal to small n kBT, where small n is not number of moles, that is number of particle per unit volume. आपको ये given है equation of state of an ideal gas. सही है, यही होती है. P equal to small n kBT, where n is number density, number of particles per unit volume. अगर आप इसे रीराइट करोगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा. PV equal to capital N kBT, equation number 1. Okay. The n dependence of the free energy per unit volume of the ideal gas, वो क्या होगा? आपको निकालना है free energy per unit volume, capital F by capital V, that how it is going to depend on temperature. इसका dependence निकालना है on small n. आपको निकालना है as a function of small n. Small n का मतलब capital N, capital V और T. ठीक है. आपको निकालना है F as a function of Helmholtz free energy निकालनी है आपको. ठीक है. फ्री एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ पीवी एन एन. प्रेशर गिवन है, निकालना है एफ. पी से एफ कैसे निकलेगा? पी से एफ. ग्रेट फिजिसिस्ट हैव स्टडीड अंडर वेरी फाइन टीचर्स. यहां से एक फॉर्मूला निकलेगा डीएफ इक्वल टू माइनस का पीडीवी माइनस का एसडीटी प्लस का म्यूडीएन. तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि पी और एफ में ये रिलेशन होता है डेल एफ बाई डेल वी एट कांस्टेंट पी कोमा में. एफ से पी तो निकल जाता है इस डेरिवेटिव को यूज करके. अब हमें उल्टा करना है, पी से एफ निकालना है. तो वो कैसे निकलेगा? एफ इक्वल टू माइनस पी डीवी इंटीग्रल प्लस सम फंक्शन ऑफ पी कोमा में. ऐसे निकलेगा. बस सब्स्टिट्यूट कर दो पी को. तो पी इज एन के बी टी बाई बी. एन के बी एन और टी कैन बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट प्लस सम फंक्शन ऑफ पी कोमा में एन. सो ये आ जाएगा माइनस एन के बी टी एल एन ऑफ वी प्लस सम फंक्शन ऑफ टी कोमा में एन. आपको निकालना है फ्री एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. स्मॉल एफ निकालना है आपको. तो स्मॉल एफ विल बी कैपिटल एफ बाय कैपिटल वी, राइट? सो कैपिटल एन बाय कैपिटल वी विल गिव यू स्मॉल एन. माइनस एल एन वी को हम लिख सकते हैं, सब लोग बोर्ड पे देखो, एज 1 ओवर में वी. आई कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एन. So this will give me small n kBT ln of small n minus ln of capital N. ऐसा कुछ आ जाएगा. प्लस सम फंक्शन ऑफ p कोमा में n बाय में ऐसा कुछ आ जाएगा. So small f comes out to be this, which I can rewrite and say small f will be equal to small n kBT ln of small n. And इस सबको मैं कुछ भी लिख सकता हूँ. I can write this as a function of some another g function of t कोमा में n होल डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम. ऐसा कुछ. आप इस पूरे से अगर आप स्मॉल एन के बी अगर आप कॉमन खींच लेंगे, अगर आप देखें तो पूरा एक इसमें कॉमन ले रखा है स्मॉल एन के बी टी. तो आई कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय में n. तो दिस विल बिकम स्मॉल एन, या एन के बी टी से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज स्मॉल एन के बी टी एंड दिस विल कम आउट ऑफ एज कॉमन. एल एन एन अंदर बचेगा प्लस सम फंक्शन ऑफ टी कोमा में n होल डिवाइड बाय में n के बी. दैट इज सम अनदर फंक्शन ऑफ टी कोमा में n जिसको यहाँ पे लिख रखा है सीटी से डिनोट कर रखा है. तो दिस मैचेस विद विच ऑप्शन आप देख लीजिए किससे मेल खा रहा है. तो दिस मैचेस विद n के बी बाहर ln of n, ऑप्शन ए. तो आप लोगों को निकालना था हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. तो 20 इज डन. नेक्स्ट बताओ 21 से 30. सर 25. 25, 27, 27, 29, 29, 25, 27 and 29. 23. 22, That's it. और कुछ 25, 27, 29 इनके अलावा 23, 23. 23. 22, That's it. 22, Repeat करो. 22. 22. Yes, sir. ये भी वही है, ठीक है. इसमें भी वही कंसेप्ट है जो अभी कराया नहीं गया. तो 22 अभी छोड़ो, 23 भी अभी छोड़ो. रीजन वही है, एक छोटा सा कंसेप्ट रहता है तो देख लेंगे. 25, 27, 29 देख लेते हैं. 25, 27, 29.
22 देख लेंगे, ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है वो कराना है। 25, 27, 29 कर लो, नोट कर लो, हो गया तो बता दीजिए। डन सर। डन। सर 28 नंबर पे 28, ओके, नो प्रॉब्लम। चलो लेट्स बिगिन विद 25th first. For a particular thermodynamic system where entropy is related with U and V by this relation, Gibbs free energy will be what? देखो S is given to you as a function of U and V. ये given है आपको क्वेश्चन में। S बराबर C times U की पावर 3/4 V की पावर 1/4, इक्वेशन नंबर 1। आपको निकालना है गिब्स फ्री एनर्जी। G जो होता है दैट इज H माइनस TS, और जो H होता है दैट इज U प्लस PV। तो G बराबर हो गया U प्लस PV माइनस TS। अगर ध्यान से देखूं ऑप्शंस की तरफ तो UPT ये सब रिटेन रखा हुआ है, UPT। तो इसका मतलब देयर इज नो प्रॉब्लम विद V U, राइट। इन सिंबल्स को मैं एज इट इज रख सकता हूं। इनफैक्ट S का एक्सप्रेशन भी मुझे ऊपर पता है, राइट। तो अगर मैं किसी तरह S की मदद से P निकाल लूं और S की ही मदद से किसी तरह T निकाल लूं, then it will be helpful for me. I can substitute and determine G. S से P और T निकल सकते हैं या नहीं, लेट्स सी। S से P और T, so I will use combined form of first and second law, TdS बराबर du plus PdV माइनस का म्यू dm। so ds बराबर 1/t du plus p/t dv माइनस म्यू बाई टी डी। तो सही है, यहाँ से मुझे दो फॉर्मूले दिख गए, 1/t और p/t। 1/t इक्वल टू del s by del u at constant v comma में n, and p/t इक्वल टू del s by del v at constant u comma में। use this formulas, del s by del u लो at constant v comma में, and del by del u लेना है इसका c u की पावर 3/4 v की पावर 1/4, इसका डेरिवेटिव लेना है। क्या आएगा? 3/4 C u की पावर माइनस 1/4 3/4 u की पावर माइनस माइनस 1/4 1/4 माइनस 1/4 v की पावर 1/4, तो 1/t ये आ, ठीक है। सो t किसके बराबर आ गया? 4/3 c u की पावर 1/4 v की पावर 1/4, ऐसा कुछ आ, ठीक है। एंड p/t del by del v लेना है ऑफ s c u की पावर 3/4 v की पावर 1/4, so this will give you c u की पावर 3/4 1/4 u v की पावर माइनस 3/4। सो p/t ये आ गया, तो p किसके बराबर आ गया? t से गुना कर दो, माइनस 4 v की पावर माइनस 3/4 टाइम्स t, t को सब्स्टिट्यूट कर दो, t इज 4 u की पावर 1/4 ओवर में 3 c v की पावर 1/4। देखो कितना आ रहा है, ये सॉल्व करो इसको जरा। 4 से 4 कट गया, u की पावर कितना आ रहा है, कंबाइन करो, 1 ही आ रहा है सर, 1, ठीक है। v की पावर कितना आ रहा है? -1। अच्छा c से तो c कट गया, तो c तो नहीं है, ठीक है। एक नीचे 3 है, बताओ u की पावर 1 आ गया, v की पावर कितना आ रहा है? -1। तो ऐसा कुछ आ गया, 3v। सही है। सो एक फॉर्मूला ये आ गया, एक फॉर्मूला ये, सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, देखो कितना आ रहा है। सो देयरफॉर g कम्स आउट टू बी u प्लस p टाइम्स v। p को अगर v से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? u/3 1/3 u बचेगा बस, माइनस t टाइम्स s, t को सब्स्टिट्यूट कर दो, 4 u की पावर 1/4 ओवर में 3 c v की पावर 1/4 टाइम्स s, s को सब्स्टिट्यूट कर दो, c u की पावर 3/4 v की पावर 1/4। देखो क्या बच रहा है, चेक करो, c से तो c कट गया, v की पावर 1/4 से v की पावर 1/4 कट गया, क्या बचा देखो, u की पावर कितना बचा? 1 u की पावर इन दोनों को जोड़ो, कितना आ रहा है? 0 आंसर कितना आ गया है? 0 0 आ गया सर। कौन सा ऑप्शन हो गया? C। ऐसे करना था। एक बार Okay, फिर से देखो कि कैसे मुझे क्लिक करा। मेरे को गिवन है s एज अ फंक्शन ऑफ u एंड v, मेरे को निकालना है g। u और v से कोई दिक्कत नहीं है, तो u को तो रखे रहने दूंगा, v को भी रखे रहने दूंगा, s पता ही है, बस किसी तरह ये दो अननोन्स आ जाए, किसी तरह p आ जाए, किसी तरह t आ जाए। तो मैंने इस एम के साथ चला कि इस एंट्रोपी से, इस गिवन एंट्रोपी से क्या मैं प्रेशर और टेम्परेचर निकाल सकता हूँ। एंट्रोपी से प्रेशर और टेम्परेचर
तो मैंने कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ से दो फॉर्मूले निकाले, एक ये फॉर्मूला एक ये फॉर्मूला। इन दोनों फॉर्मूले को यूज करके मैंने टेम्परेचर निकाला, प्रेशर निकाला, सब्स्टिट्यूट करा, आंसर आ गया 0। मेथड पकड़ो कि सर को ऐसा क्यों क्लिक करा, करने के तो 1000 तरीके थे, सर को ऐसा ही क्यों क्लिक करा, मुझे ऐसा इसीलिए क्लिक करा, एंट्रोपी गिवन थी एज अ फंक्शन ऑफ यूएन, गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी थी, यूवी से दिक्कत नहीं है, एंट्रोपी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दिक्कत प्रेशर टेम्परेचर से है, प्रेशर टेम्परेचर निकालना चाहा फ्रॉम एंट्रोपी यूजिंग कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, उससे दो फॉर्मूले निकाले। ये फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है, कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ लिखो, उसके बाद इसको ऐसे रीराइट करो और वहां से दो फॉर्मूले निकालो, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत, स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। 25th डन। 27th हुआ किसी का 27th? यस सर। गुड, नोट करो जल्दी से 25th। डन, कर दूं रेज? कर लो, नोट कर लो। डन सर। बाकी लोग डन सर। डन डन, चलो चलो चलो, ठीक है। Okay, 27. A student has measured the Gibbs free energy of a certain chemical reaction as a function of temperature and pressure, as a function of temperature at constant pressure. और ऐसा कुछ डेटा उसको मिला, डेटा मैं कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ। गिब्स फ्री एनर्जी गिवन है किलो जूल्स में, टेम्परेचर गिवन है केल्विन में, कुछ मार्क्स गिवन है यहाँ पे 280, 290 एंड देन 300 एंड देन 310। जो लाइन है वो यहाँ पे कहीं पे आके टच कर रही है, एंड -27, -26, -25 एंड देन -24, या यस, यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ तक जा रही है। You have a straight line like this, and there are a few points like -25 and then probably 280 के आसपास ऐसा कोई पॉइंट है। You have another point 290 के आसपास ऐसा कुछ, another point near to 295, सही है, and a point nearby 305, yeah, somewhere here, ऐसा कुछ। What you need to do is entropy of the reaction is independent of the temperature, assuming कि S is independent of temperature, आपको value of entropy निकालनी है in joule per Kelvin, entropy निकालना है। गिब्स फ्री एनर्जी का डिपेंडेंस गिवन है ऑन टेम्परेचर, आपको निकालना है एंट्रोपी। अब देखो G से S निकालना है, G से S, गिब्स फ्री एनर्जी से एंट्रोपी निकालना है, देख लेते हैं कि निकल पाएगा भी या नहीं। ग्रेट फिजिसिस्ट हैव स्टडीड अंडर वेरी फाइन टीचर्स। तो dG इक्वल टू माइनस का SDT प्लस का VDT, सो S इक्वल टू माइनस ऑफ डेल G बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट T। इसका मतलब अगर मैं इस लीनियर लाइन, इस लाइन का, इस स्ट्रेट लाइन फिट का अगर स्लोप निकाल लूं, डेल G बाई डेल T, डेल Y बाई डेल X निकाल लूं और नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं, दैट इज गोइंग टू सर्व द पर्पस, ठीक है। सो नेगेटिव स्लोप ऑफ G वर्सेस T, तो बस इसका स्लोप निकालना है आपको। स्लोप कैसे निकलेगा यारो, बताओ, स्लोप निकालना है। वही सर y2 सर 2 पॉइंट्स का माइनस डिफरेंस। y1 अपॉन हाँ x बताओ कैसे निकलेगा स्लोप, आप लोग ही गाइड करो मुझे। स्लोप निकालना है, स्लोप डेल Y बाई डेल X निकालना है, बताओ। सर 310 माइनस 280 एंड -24 प्लस 27। ठीक है, वेरी गुड। सो 310 माइनस ऑफ 270, सर नीचे आए। हाँ ऑब्वियसली, ठीक है। 310 माइनस का 270 नॉट 280, एंड दिस विल बी माइनस का 24 प्लस का 28, सो दिस विल गिव यू 4 ओवर में कितना आ जाएगा ये, आई थिंक 4 ओवर में 40, 1 ओवर में 10, दैट इज 0.1, so slope is 0.1, so entropy is 1 over में 10, obviously with a negative sign। सर वो किलो जूल है। हाँ, that is in kilo, so this is kilojoule per Kelvin, kilojoule per Kelvin with a negative sign, so slope is minus का 100 joule per Kelvin, therefore entropy is plus का 100 joule per Kelvin, so this is matching with option माइनस ही हो जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा ना।
Yes, sir. राइट? सर माइनस 4/40 प्लस हाँ, दोबारा बोलो, तेज बोलो थोड़ा। सर माइनस 4/40 कितनी हुआ है सर प्लस नेगेटिव इसलिए होगा ना यार, y2 minus y1 y में x2 minus x1. So if you are treating this as 0.2 and this as 0.1, so y2 minus y1, value of y at 0.2, it is minus 28. तो फिर ऐसे लिखो इसको, माइनस का 28 एंड प्लस का 24. दैट इज वाई एक नेगेटिव का साइन. y2, y की वैल्यू एट 0.2 माइनस y की वैल्यू एट 0.1 ओवर में x की वैल्यू एट 0.2 माइनस x की वैल्यू एट 0.1. दैट इज वाई नेगेटिव. स्लोप इज नेगेटिव, दिख भी रहा है मेरे को, फॉलिंग ग्राफ. जैसे जैसे x बढ़ रहा है y घट रहा है. ठीक है. सो दिस वाज योर 27th. नोट कर लीजिए. 28, for a cyclic process performed by an ideal gas, changes in thermodynamic functions are zero. Indicate the set in which all the functions are zero. cyclic process के लिए change in value of state parameter कितना होगा? For a cyclic process, change in value of a state parameter कितना होगा? 0 होगा सर. For a cyclic process, change in x 0 होगा if x is a state function. आपको आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन नंबर 28 में विच ऑफ द फॉलोइंग 4 ऑप्शंस किसके लिए चेंज विल बी 0 फॉर ऑल द गिवन पैरामीटर्स. जैसे ऑप्शन ए, व्हाट अबाउट डेल्टा डब्ल्यू, विल इट बी 0 इन अ साइक्लिक प्रोसेस? वर्क 0 होगा साइक्लिक प्रोसेस के लिए? No, sir. No, दैट्स नॉट अ स्टेट फंक्शन. सो देयरफॉर ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. ऑप्शन बी में हीट डेल्टा क्यू, No, sir. अगेन दैट विल बी नॉन जीरो. ऑप्शन सी में डेल्टा क्यू, अगेन इट विल बी नॉन जीरो. ऑप्शन डी में अगर आप देखें तो डेल्टा यू भी 0 बेटा, डेल्टा एस भी 0, डेल्टा एच भी 0 और डेल्टा एफ भी 0 इन अ साइक्लिक प्रोसेस. ऑल दीज 4 विल बी 0 फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस. व्हाई? बिकॉज ऑल दीज 4 आर स्टेट फंक्शंस. इनफैक्ट अगर इसके साथ डेल्टा जी भी लिख दूं तो वो भी 0 होगा. आपको मैंने ये 5 स्टेट फंक्शंस पढ़ाए हैं अभी तक. एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी एंड गिब्स फ्री एनर्जी. ये पांचों के पांचों स्टेट फंक्शन होते हैं. चेंज इन वैल्यू ऑफ अ स्टेट पैरामीटर अंडरगोइंग अ साइक्लिक प्रोसेस इज 0. 29th कर लो नोट. ये क्वेश्चन पढ़ देता हूं इतना. 29, when a gas expands adiabatically from V1 to V2 by a quasi-static reversible process, it cools from T1 to T2. If now the same process is carried out adiabatically and irreversibly, T2 prime is the temperature of the gas when it gets equilibrated. So what is the relationship between T2 prime and T2? ये पूछा आपसे. What is the relationship between T2 prime and T2? ठीक है. एक बार हम किसी सिस्टम को एक्सपैंड करा रहे हैं थ्रू एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस, एक बार हम उसको एक्सपैंड करा रहे हैं थ्रू एडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस. दोनों में ही कूलिंग होगी, बट किसमें ज्यादा कूलिंग होगी, किसमें कम कूलिंग होगी, ये क्वेश्चन. Let me know if you have written this. I will erase and proceed with 29. Yes. बताओ बाकी लोग भी कर लिया है? चलूं आगे? Yes, sir. चलो. क्या डिफरेंस होता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में? Reversible process is the process which can be reversed. Irreversible process is the process which cannot be reversed. During reversible process is carried out very slowly, as well as there are no frictional forces present in the system. However, in irreversible process is carried out at comparatively at a faster rate, and frictional forces are present in the system. V1 से एक्सपैंड होकर के वॉल्यूम हो रहा है V2. केस 1, एडियाबैटिक रिवर्सिबल expansion. So for this case there are no frictional forces present. तो देखो होगा क्या. डेल्टा क्यू कितना होगा, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है. कितना होगा डेल्टा क्यू? सराउंडिंग से कितना हीट का लेन देन होगा इस गैस मॉलिक्यूल्स व्हाइल एक्सपैंडिंग? कितना होगा? 0. वर्क पॉजिटिव, नेगेटिव या 0? एक्सपैंड हो रही है गैस, तो सिस्टम पुश कर रहा है इसको, तो वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग पॉजिटिव, 0 या नेगेटिव? पॉजिटिव. अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाओ. ये 0, ये पॉजिटिव, तो du कितना होगा? नेगेटिव. du का नेगेटिव होना क्या इंप्लाई करेगा? dt का नेगेटिव होना. इसका मतलब टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस या इंक्रीजेस? डिक्रीजेस.
तो इसका मतलब गैस विल अंडरगो कूलिंग, यही बोल रखा है, गैस विल अंडरगो कूलिंग। ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर जो मेंशन था दैट वाज T1 एंड फाइनली टेम्परेचर हो गया T2। तो इट इज फॉर श्योर दैट T1 इज ग्रेटर देन T2, इट विल अंडरगो कूलिंग। अब अगर यही प्रोसेस कैरी आउट किया जाता एडियाबैटिकली एंड इरिवर्सिबली, तो क्या होता? वही सिलेंडर पिस्टन असेंबली बना दे रहा हूं मैं। इनिशियली वॉल्यूम था V1, फाइनली ये पिस्टन एक किसी ग्रेटर हाइट पे पहुंच गया जहां वॉल्यूम हो गया V2। दीवारें जो थी वो एडियाबैटिक थी, अंदर कोई गैस मॉलिक्यूल्स भरे हुए थे जो पिस्टन को पुश कर रहे थे। अब इस वाले केस और इस वाले केस में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे पिस्टन और सिलेंडर की दीवारों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्सेस प्रेजेंट, फ्रिक्शन इज प्रेजेंट। तो बताओ जब ये एक्सपैंड कर रहा होगा, जब ये सिस्टम एक्सपैंड कर रहा होगा, तो फ्रिक्शन फोर्सेस के कारण हीट जनरेट होगी, यस और नो? कुछ ना कुछ तो हीट जनरेट होगी ना, यस और नो? यस सर। Yes. भले ही थोड़ी अमाउंट में हो बट होगी, राइट? ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेस, ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेस some heat will be generated. This heat generated will increase, this heat generated will increase the internal energy of the system. This will help in rising the temperature. ये सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी। although इंटरनल एनर्जी सिस्टम की घट रही थी, इट वाज डिक्रीजिंग, यू वाज डिक्रीजिंग। क्यों घट रही थी? क्योंकि कुछ ना कुछ काम करना पड़ रहा है सिस्टम को, बट एडियाबैटिकली कर रहा है सिस्टम, तो एनर्जी कहां से लाएगा? अपनी खुद की इंटरनल एनर्जी घटाएगा। तो यू घटेगा, बट कुछ ना कुछ जो हीट जनरेट होगी उसके कारण इतना एग्रेसिवली नहीं घटेगा। टेम्परेचर यहां भी घटेगा बट इतना एग्रेसिवली नहीं घटेगा। तो इफ T1 वाज द इनिशियल टेम्परेचर जहां से सिस्टम ने स्टार्ट किया एंड इट डिक्रीज्ड टू T2 प्राइम, इट डिक्रीज्ड टू T2 प्राइम, तो अभी भी T1 इज ग्रेटर देन T2 प्राइम, अभी भी टेम्परेचर घटेगा बट ज्यादा एग्रेसिवली नहीं घटेगा। एंड हेंस T2 और T2 प्राइम में कौन बड़ा कौन छोटा? T2 प्राइम इज ग्रेटर देन, विच ऑप्शन इज करेक्ट? देख लो, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन बी इज करेक्ट। अच्छा फिर बता नहीं लास्ट। हाँ मतलब देखो ये तो सिंपल सी बात है कि दोनों में ही एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन इज ऑलवेज एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मतलब सिस्टम एडियाबैटिकली एक्सपैंड कर रहा है, एक्सपैंड करने के लिए वर्क करना पड़ेगा सराउंडिंग पे। कहां से एनर्जी लाएगा? अपनी खुद की इंटरनल एनर्जी को घटाएगा। इंटरनल एनर्जी के घटने के कारण टेम्परेचर सिस्टम का घटेगा ही घटेगा। इसका मतलब गैस विल अंडरगो कूलिंग, बट यहाँ पे कूलिंग तो होगी बट फ्रिक्शनल फोर्सेस के कारण थोड़ी थोड़ी हीटिंग भी होगी। एंड हेंस टेम्परेचर यहाँ भी घटेगा बट इतना एग्रेसिवली नहीं घटेगा जितना रिवर्सिबल एक्सपेंशन के केस में घटता, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए फ्रिक्शनल फोर्सेस प्रेजेंट हैं, इसलिए। चलो दैट्स ऑल। सो 29 ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर कुछ डाउट्स अभी भी रह गए होंगे, प्रोबेबली रह ही गए होंगे क्योंकि वी हैव डिस्कस्ड टिल 30 प्रोबेबली। टोटल एमसीक्यू कितने थे? 52। 52। ठीक है, तो ये जो 20-22 क्वेश्चन रह गए हैं इसमें भी कुछ ना कुछ डाउट होंगे ही आपको। देखते हैं व्हाट आई विल डू इज एज फॉलोज। पहले फेस ट्रांजिशन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद देयर विल बी अ डाउट सेशन फ्रॉम चैप्टर 3, 4, 5, 6 एंड 7। कंबाइंड डाउट सेशन ले लेंगे जिसमें आपको कहीं से भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो आप पूछ सकते हैं। और प्लस एक रिवीजन सेशन भी रखेंगे जिसमें हम सारे चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे। तो मेरे को पहले 7th कंप्लीट करने दो, उसके बाद 3 से 7 एक रिवीजन सेशन रखेंगे 2 घंटे का, जिसमें हम ये सारे चैप्टर्स रिवाइज करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7 ये 5 चैप्टर रिवाइज करेंगे और इन 5 चैप्टर से डाउट लेंगे। तो 2 क्लासेस रख लेंगे, एक डाउट क्लास और एक रिवीजन क्लास। शॉर्ट नोट बनवाने के लिए बोले थे। हाँ सॉरी, शॉर्ट नोट के लिए बोले थे सर आप बनवाने के लिए। किसके लिए बोला था? शॉर्ट नोट बनवाने के लिए। हाँ शॉर्ट नोट बना लेंगे, उस रिवीजन क्लास में शॉर्ट नोट बना लेंगे, ठीक है। सर इसमें बल्क मॉडुलस और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। वो भी आ रहे हैं, वो एक टॉपिक कराना है मुझे। इनफैक्ट इसमें से एक पॉइंट भी रहता है मेरा, वो भी कराना है मुझे, इक्विलिब्रियम वाला। ठीक है बिल्कुल, बल्क मॉडुलस, इलास्टिसिटी, कंप्रेसिबिलिटी और आपका ये आइसोबारिक वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी। कुछ नहीं होता, बस यही होता है, 3 फॉर्मूले होते हैं, चाहो तो लिख लो, बाकी मैं डिटेल में करा दूंगा। ओके सर। इसका फॉर्मूला होता है ये, फिर होता है एक आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, बीटा टी से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी का उल्टा होता है, ये इनवर्स होता है। और फिर एक होता है जो आज हमने एक क्वेश्चन में देखा था, आइसोबारिक वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी।
ये 3 फॉर्मूले आपको रटने हैं। अल्फा पी इक्वल टू 1 ओवर में वी डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी। 10 मिनट लगेंगे बस ये टॉपिक कराना है। अभी फिलहाल के लिए 3 फॉर्मूले रट लो आप। चलिए, थैंक यू एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर द डे। Thank you, sir.